joining for the press conference as the lead captain of Pakistan cricket team. We will take first question in English, 3 to 4. Then we will come to the Urdu questions. Kindly send your request in the chat room so that I can know and I can cater the request, please. Thank you. Yes, Dean, you can ask a question, please. Hi, Azza. Hi. Obviously, a disappointing end to the first test, and then the second test, you guys had kind of made a lot of the running, but the weather kind of got in the way. As you go into this third test, do you kind of feel as though overall Pakistan are in a pretty good space, that you've played some decent cricket and that you've got what it takes to win this third test? Yes, of course. I think we have played very good cricket so far in this series. As you mentioned, unfortunately, we ended up in the losing side in the first test, but there was still a lot of positives from the first test and as well as in second test match. Unfortunately, weather played its main part in the second test. I thought the game was poised very nicely. It would have been a very close contest in that game as well, but we were playing very good cricket in the second test as well. And do you feel as well that your team, are you going to make any changes, do you think, or are you going to kind of keep faith with the guys that you played in the last one? Well, at the moment, we're in a very good space where obviously the wicket been under cover for the whole day yesterday, and it's been taken off, cover's been taken off this morning, and we're going to see the final look of the pitch this evening, and then we're going to decide the final 11. But at the moment, as you asked earlier, we think that we have got everything to win the test match, the most important final test match. Yes, Ali, you can ask a question, please. Hi, Azza. You've not been Pakistan captain for that long, but there's a lot of chat back at home about your position, etc. How do you sort of put that talk to one side and sort of keep that pressure out when you're trying to focus on a test match? Well, obviously, as a player, as a professional, as a captain as well, you have to look what's what challenge ahead of you. And I think as a team, as a captain, we are focused on the game tomorrow. It's a must-win game for us, and we are looking forward to it. We played some very decent cricket so far in the series, and we want to take all the positive in the third test. The talks, rest of the talks are, beside. We want to focus on the game tomorrow. Do you enjoy the captaincy? Is it something you want to do for a long time? Of course, I'm lucky to have such a nice bunch of guys who are putting everything for Pakistan. They are gelled really nicely, so it's very easy job. They made a job very easy for me, so I can focus on the strategies and all that. They're very, very talented and very nice bunch of guys, and I'm enjoying it. And hopefully, we can win this test match and then move forward from there. Yes, John, you can ask a question, please. Yeah, they've announced they're going to be slightly more flexible with the start times, perhaps beginning at 10:30 if they need to make up time from the previous day. Were you involved in those discussions? Yeah, of course. Obviously, the match referee has conveyed the message from, obviously, ECB has made some changes. And I think for the game itself, we are with it because we want to make, be part of the, test match where the best chance, maximum chance the cricket should be played. And I think they're moving towards that, and they made the changes, and they have taken us in the confidence as well. Did you find some of the delays, particularly for bad lights during the previous match, quite frustrating? Well, it's frustrating, but in the other hand, you have to see, sometimes umpire's job is not easy. Sometimes, they have to keep balance between bat and ball. So that's why, their job becomes very tough, where everyone wants to see cricket, but they want to, to play safety as well. But whatever it was possible, I think they're trying to make sure that whatever the time will be lost, they will try and make it up either in the morning or evening, wherever the best weather forecast is. Hopefully this week will be much better than the last week, and we'll see a lot of more more play
in this game than the last game. Yes, Daniel, please. Daniel. Okay, Amir, you can ask, please. Assalamualaikum, Azhar. Azhar, my question is about the about our pace bowling attack. I mean, some people feel that's a bit too experienced. I mean, are you looking to bring in some more experience for this test match tomorrow? Well, we are lucky enough to have exciting fast bowlers, although they're young in terms of, if you see Naseem Shah, he's only 18, and Shaheen Shah is getting to just 20, but they're exciting characters, and obviously you can't buy experience without playing. So I think we have to back them. They're bowling really well. They're putting opposition under pressure, and we are backing them. And you can't just sit outside and gain experience. I think you have to play. You go, and in the last end of last year, when we were struggling for fast bowlers, when we went to Australia, we picked these guys, and they taken up the challenge, and they impressed everyone around the world. So I think they have so much potential. Experience, it will come, but I still feel they're good enough to win test matches for Pakistan. Thank you. Daniel, can you hear me? Okay, Ji, we will move to the Urdu question, please. Shahid Hashmi, Rashid Shakur, and Atik. अजहर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजहर, ये बताइए कि हम पहले भी सीरीज बराबर कर चुके हैं, 2016 में 2-1 डाउन थे, फिर बराबर कर सकते हैं क्या? किस तरह मोटिवेट किया है प्लेयर्स को कि इस चैलेंज पे पूरा उतरे? उर्तुगल ड्रामा दिखाया या इमरान खान का कोट सुनवाया कि घबराना नहीं है? ये अर्तुगरुल तो सब देख रहे हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली ये सारी टीम के, मैं शायद ही कोई प्लेयर हो जो ना देख रहा हो। दूसरी बात ये कि जो सबसे इम्प्रेसिव चीज थी इस टीम की, मेरे जैसे अगर देखें तो अगर आप कोई मैचेस हारते हैं और वन साइडेड मैचेस हारते हैं, तो यू कैन ओनली गो अप फ्रॉम देयर ना। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है कि आपने नेक्स्ट मैच में इससे बुरा नहीं हो सकता, हमने इससे ऊपर जाना है। लेकिन जब आप जीता हुआ टेस्ट मैच आपके हाथ में हो और आप हार जाएं, तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को उठाना। तो इस टीम ने जिस तरीके से अपने आप को उठाया है, सेकंड टेस्ट में जिस तरीके से हमने टफ कंडीशन में बैटिंग की है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू द प्लेयर्स। जिस तरह वो हर्ट थे पिछले मैच से, लेकिन उन्होंने उसको अपने आप को गिरने नहीं दिया और आए हैं और चैलेंज को फिर लिया और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली आई थिंक उन टफ कंडीशंस के अंदर। बॉलिंग भी बहुत जबरदस्त हो रही थी। आई थिंक स्पिरिट्स बहुत हाई थे, विच इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी। और इसी तरह हम कोशिश करेंगे इस मैच में भी जाएं, अच्छी क्रिकेट खेलें। ऑब्वियसली रिजल्ट का हम बाद में सोचेंगे, हम प्रोसेस को कोशिश करेंगे याद रखें किस तरीके से हमने लेके चलना है चीज़ों को। इंशाल्लाह रिजल्ट भी हमारी फेवर में आएगा, और जिस तरीके से हमने पास में भी किया है, हमेशा पाकिस्तान टीम कम बैक करती है, और इंशाल्लाह इस मैच में भी आपको नजर आएगा। जी प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे अपने माइक म्यूट कर दीजिएगा प्लीज। थैंक यू जी। शुक्र भाई, देन याकूब साहब एंड देन अतीक प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अजहर। वालेकुम अस्सलाम। अजहर, मतलब जिस तरह का ये आइटनरी बनी, उसमें 2 टेस्ट मैच एक ही वेन्यू पे हैं, तो एक तो जिस तरह क्राउड नहीं होता और बिल्कुल एक कहना चाहिए कि सपाट किस्म की यानी जो सिनारियो होता है, तो खिलाड़ियों के लिए कितना मुश्किल और किस तरह आप लोग इस चीज़ को देखते रहे हैं और किस तरह इसको मतलब इससे निपटते रहे कि एक ही जैसे माहौल में एक ही वेन्यू पे आप रह रहे हैं, एक ही होटल, फिर ग्राउंड, फिर होटल, बाहर आप नहीं जा सकते, तो कितना मुश्किल होता है कि 2 लगातार टेस्ट मैच एक ही वेन्यू पे जहाँ पे क्राउड नहीं है और इस तरह की सिचुएशन में, तो कितनी मुश्किल है ये सारी सूरत हाल आप लोगों के लिए? ऑब्वियसली आसान तो नहीं होता, लेकिन आई थिंक यहाँ पे हमारे फेथ जो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एज ए टीम ये फील करते हैं कि स्टिल लकी हैं कि इस टाइम के अंदर भी हम क्रिकेट खेल रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर पर्सनली मैं इस चीज़ का जवाब दूं, तो मैंने इस एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया कि सारी फोकस जो थी वो क्रिकेट के ऊपर थी। जो भी एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने चीज़ें यहाँ पे रखी थी, उससे हम पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और ट्रेनिंग टाइम भी हम अपने मर्जी से कर रहे हैं, और सब कुछ हमारा फोकस क्रिकेट के ऊपर है। आई नो कि टाइम काफ़ी हो जाता है, 2 मंथ्स के अंदर आप इस तरह तरीके से रहें तो आसान नहीं होता, लेकिन
इन दीज टफ टाइम्स मेरे ख्याल में स्टिल के वी आर ब्लेस्ड टू बी प्लेइंग क्रिकेट और हम सब इसको एंजॉय कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो प्लेयर्स नहीं खेल रहे होते उनके लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ऑब्वियसली ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते मैचेस के अंदर, लेकिन जो खेल रहे हैं उनके तो जो टेस्ट मैच के अंदर फोकस होता है वो ऑलरेडी उसी तरह ही होता है। आई थिंक मैंने पर्सनली तो बहुत इंजॉय किया और जितने प्लेयर्स से बात हो रही है, जितना हम कर रहे हैं कोशिश मैक्सिमम जो है वो हम इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, इवन दो टफ, बट हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है एज ए टीम। जी याकूब साहब देने ठीक जी सर, इस वक्त अभी तक जो टूर चला है आपका, ऐसा लगता है कि आपके जो बैट्समैन की परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है, तो ये वजह है कि बड़ा स्कोर भी आप नहीं कर रहे। तो जब तक आपने बड़ा स्कोर नहीं करेंगे तो वह इंग्लैंड को तो हराना मुश्किल हो जाएगा। तो तीसरे टेस्ट में आप क्या उम्मीद करते हैं कि बैट्समैन क्या अपनी परफॉर्मेंस में तसलसल ला सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो आपको ये देखनी होगी, कंडीशंस जो होती हैं इंग्लैंड में हमेशा से टफ होती हैं। यहाँ पे बहुत कम इनिंग्स होती हैं जहाँ पे स्पेशली जब जो सर्कमस्टांसेस हमने लास्ट 3 टेस्ट मैचेस में देखे हैं, बॉलर की काफी फ्रेंडली विकेट्स रही हैं। तो तसलसल तो किसी भी जो भी ये वेस्ट इंडीज भी खेला, इंग्लैंड भी खेला, हम भी खेला, तो तसलसल तो इतना कहीं पे भी नजर नहीं आया बैटिंग में, क्योंकि टफ कंडीशंस हैं। अच्छी चीज ये है बैट्समैन जितने भी हमारे ने उन्होंने फाइट आउट किया है, पार्टनरशिप्स लगाई हैं और इनफ टोटल स्कोर किया। चाहे पहले मैच में ले लें, हमने 326 किए, शान ने 150 स्कोर किए। यू नो, एज ए वे बैटिंग बैट्समैन आसान नहीं होता है कि इंग्लिश कंडीशन में आके इंग्लिश बॉलर्स के अगेंस्ट सेंचुरी करना, फिर 150 करना। बाबर बहुत जबरदस्त खेल रहा है, आबिद अली ने पिछले मैच में करके दिखाया है। तो इन कंडीशन में हर बैट्समैन रन नहीं करेगा, लेकिन इसमें होता है कि एक बैट्समैन जो सेट हो गया वो रन करता है, फिर दूसरा किसी में दूसरा बैट्समैन सेट होता है वो करता है, लेकिन इन दी एंड कंडीशंस जो होती हैं वो आसान नहीं होती बैटिंग के लिए। तो आई थिंक हम इसमें फोकस ये करते हैं कि हमारी एज ए टीम मैक्सिमम हम रन बनाने की कोशिश करें। एज ए टीम हम कोशिश करते हैं कि इनफ रन्स ऑन द बोर्ड हों कि हम दूसरी टीम को अंडर प्रेशर डाल सकते हैं। आई थिंक कि हम दोनों मैचेस में इसमें कामयाब रहे। इवन 236 हमने जब किया था, वी वर वेरी हैप्पी विद द टोटल, बिकॉज कंडीशंस जो थी वो बॉलर्स के लिए बहुत अच्छी थी और हमने इंग्लैंड को फिर सेकंड उनकी इनिंग में अंडर प्रेशर भी डाला हुआ था। आई थिंक यहाँ पे आपको 500 या 450 देखने को हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि इनफ कंट्रीब्यूशंस आनी चाहिए तमाम बैट्समैन की तरफ से, और एक से 2 बड़ी इनिंग लगे तो यहाँ पे अच्छा टोटल स्कोर हो जाता है। जी अतीक प्लीज। अगर सॉरी भाई, वीडियो नहीं आ रही होगी, कुछ प्रॉब्लम है, आवाज़ ज़रूर आ रही होगी। अजहर, मैं सवाल करना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आपकी खुद की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं जा रही है, असद शफीक की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और फिर कप्तानी के ऊपर भी बड़े सवालात हो रहे हैं, तो आप खुद कितने दबाव के अंदर हैं? और साथ फिर ये भी नाकदीन आप पे ये कहते हैं कि मिसबा की तरह आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव कप्तान हैं, अग्रेसिव नहीं हैं, तो कितना प्रेशर है? क्योंकि पहले ही 1-0 आप डाउन जा रहे हैं, थर्ड टेस्ट उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान कम बैक करे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसके रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते तो फिर कितना प्रेशर होगा आप पे? देखिए, इस वक्त तो हमारा फोकस इस टेस्ट मैच के ऊपर है। ऑब्वियसली जो भी जिसने जो बात करनी है ऑब्वियसली वो उसकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन हमारा फोकस टोटली है एज ए बैट्समैन। मैं भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी रन्स बनाना, और इसी तरह असद की आपने बात की, वो हमारा मैच विनर है और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर वी हैव गॉट। और तमाम जो मैनेजमेंट है एज ए कैप्टन, मैं उसके पूरे बैक कर रहे हैं कि वो रन्स बनाएगा, और उसने हमेशा अंडर प्रेशर आके रन्स बनाए हैं पाकिस्तान के लिए। तो you can obviously as a batsman और as a senior player both myself and Asad हमें step up करना है, contribute करना है और पाकिस्तान के बैटिंग के साथ, और कोशिश करेंगे अपनी पूरी के इस टेस्ट मैच के अंदर जो है वो हम दोनों मिलके जो है वो पाकिस्तान को मैच जितवाएं। जी प्लीज यूसुफ अंजुम, हाफिज शहबाज एंड असगर प्लीज। जी यूसुफ भाई, आपको आवाज आ रही है प्लीज? ओके जी, हम हाफिज आपकी तरफ मूव हो रहे हैं, प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा। अस्सलाम वालेकुम अजहर। वालेकुम सलाम। अजहर, अगर अब तक देखें टेस्ट मैच, अगर अब तक जितनी भी सीरीज हुई है अगर इसको देखें तो ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस, जिस तरह आपने पहले भी कहा, बड़ी अच्छी है। कहाँ लगता है कि जहाँ पहला टेस्ट मैच जहाँ हाथ से निकला, उसके बाद जो आखिरी टेस्ट मैच में आपकी
बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई, तो उसको किस तरह आप लेकर चलेंगे? दूसरी चीज़ ये है कि क्रिकेट कमेटी में हैं वसीम अकरम, उन्होंने आप लोगों को अपॉइंट किया और अब वो खासतौर पर आपकी कप्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं, टीवी पर बैठकर भी, कमेंट्री में भी। तो कितना हर्टिंग है ये कि एक बंदा खुद पहले आपको बनाने वालों में शामिल है और उसके बाद तनकीद कर रहा है इस तरह? मैंने ऐसा सुना नहीं इस बात को, और दूसरी बात ये है कि एज आई सेड अर्लियर कि जो भी जो डिसीजन है ऑब्वियसली वो क्रिकेट बोर्ड का होता है। आई थिंक आई हैव फुल बैकिंग फ्रॉम द चेयरमैन एंड और जो भी डिसीजन उनके होते हैं वो आई थिंक उनके लेने के हैं। मेरा काम है ग्राउंड के अंदर जो भी मुझे जॉब दी गई है उसको फुलफिल करना एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन। वो मैं पूरी कोशिश करूंगा अगले टेस्ट मैच में, और बाकी चीज़ें आई थिंक जो है वो सेकेंडरी हैं। फर्स्ट थिंग इज के जो कल से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उसके ऊपर फोकस है। जी असगर प्लीज। सर तीसरे टेस्ट के हवाले से जो हमें इत्तलात मिल रही है कि फवाद को, जो कि 10 साल के बाद जिसने चौथा टेस्ट खेला है अपना, उससे ड्रॉप करके फहीम अशरफ को या शादाब को कमबैक करने की बातें हमारे सामने आ रही हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या फवाद को वाकई सिर्फ 4 गेंदों के बाद ही ड्रॉप कर देना चाहिए या उसे मजीद मौका मिलना चाहिए? देखें, एक तो पता नहीं अभी आपको कहाँ से खबरें मिल रही हैं ऑब्वियसली आप कुछ शायद टॉक शोज के ऊपर नजर आ रहे होंगे सारे डिसीजन होते हुए। आज अभी कुछ देर पहले ही कवर उठे हैं, तो आई डोंट नो कि किस तरीके से किसी ने माइंड मेकअप कर लिया है। आई थिंक जो बेस्ट 11 होगी, जो हमें लगेगा पाकिस्तान टीम को टेस्ट मैच जिता सकती है, वो हम उतारेंगे। तो आई थिंक वो आपको मेक श्योर होना चाहिए कि अभी हम पिच को अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी फाइनल लुक पिच की नहीं आई, तो हम फाइनल डिसीजन कैसे कर सकते हैं? जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा अंस, एहतशाम एंड अब्बास रजा प्लीज। अंस आपको आवाज आ रही है? रजा भाई मेरा सवाल हो गया। ओके थैंक यू। जी एहतशाम साहब प्लीज। अच्छा भाई आपका माइक। जी जी आ रही मेरी? आ रही मेरी? जी आ रही अगर ये बताइएगा, कि पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रगल कर रही है। पहले टेस्ट में भी हमने टॉस जीता इस उम्मीद में कि हम 5 रोज जाके पिच इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 4 दिन में ही मैच खत्म होगा और वो जो एडवांटेज हम नहीं ले सके। सेकंड में भी हमने पता था कि 2-3 रोज बारिश है, फिर भी हमने टॉस जीत के बैटिंग की। तो समझते नहीं कि थोड़ा सा आपको गड़बड़ हो रही है कि कंडीशन जो इंक्रीमेंट है और मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए, और वनरेबल बैट्समैन है उनकी बॉलिंग अच्छी है, अपने बैट्समैन को फ्रेश पिच पे खिला देते हैं। देखें, मेरे ख्याल में जितनी देर भी चाहे पहले टेस्ट की पहली इनिंग लें, दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग लें, हमारे बैट्समैन ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। आई थिंक जिसमें आप शान ले लें, आबिद ले लें, बाबर ले लें, रिजवान की इनिंग ले लें, तो कंट्रीब्यूशन और आपको नज़र आया कि प्लेयर्स ने फाइट आउट किया टफ कंडीशंस के अंदर। आप इंग्लैंड की बॉलिंग पहली इनिंग में खेल लेंगे या दूसरी इनिंग में खेल लेंगे, आपको दोनों में वो आपको अच्छा ही खेलना पड़ेगा। तो वो तो आपको किसी भी टाइम पे आसान नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि पिच पहले दिन ज़्यादा मुश्किल होगी या आखिरी दिन ज़्यादा मुश्किल होगी। सेकंड टेस्ट मैच में जहाँ तक बात रहेगी, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि बारिश थी, ये था वो था। कई फोरकास्ट गलत हुई हैं पिछले मैच में। कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बारिश आ जाएगी, और जितनी धूप और जितनी गर्मी 2 दिन पहले पड़ी है पिच के ऊपर, और जिस तरह की कंडीशन नजर आ रही थी, पहले दिन जो 2 घंटे थे उसके अंदर अच्छी खासी गर्मी थी। अनफॉर्चुनेट बात है कि वो जो बारिश थी वो ज्यादा देर के लिए होगी, बैड लाइट बहुत ज्यादा देर हुई, वरना हम जिस स्टेज पे पहुंच गए थे तो हम शायद 300 रन पोस्ट कर सकते थे। लेकिन पिच के अंदर सपोर्ट थी, और आपने देखा थ्रू आउट रही है, और सिर्फ 100 ओवर का प्ले के बाद, मतलब 130 ओवर का प्ले ऑलमोस्ट हुआ है, और गेंद अप एंड डाउन हो रहा था, आप देख रहे थे। तो आप आपको टफ चैलेंज लेने पड़ते हैं एज ए कैप्टन भी, एज ए टीम मैनेजमेंट और एज ए बैटिंग यूनिट भी, कि यार आपको कौन सी चीज ज्यादा मुश्किल करेगी। तो एज ए टीम हम दोनों दफा फोकस रहे हैं कि यार हम पहले बैटिंग करेंगे, मुश्किल होगा लेकिन हम फाइट आउट करेंगे, और दोनों इनिंगों में हमने किया है। तो आई थिंक ये पॉजिटिव्स देखने चाहिए, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स हैं एज ए बैटिंग यूनिट हमारे पास, और हम कोशिश करेंगे इससे बिल्ड करें और आगे जाएं और अच्छा करें।
जी अब्बास रजा, then Abdul Ghaffar and then Yusuf Sir, please. सर जो गुज़श्ता मैचेस में देखा है कि ऑलराउंडर्स जो हैं इंग्लैंड के और टेल एंडर्स, उनके खिलाफ थोड़ी सी हमारी प्लानिंग कमज़ोर रही, हम मैच भी हारे इसी वजह से, तो हम उनको आउट नहीं कर सकते। इस वक्त जो नया मैच है तीसरा, इसके लिए कोई ख़ास प्लान है ऑलराउंडर्स जो है और टेल एंडर्स इंग्लैंड के हवाले से? बिल्कुल, इंग्लैंड की ये हमेशा से कुछ लास्ट 4-5 साल से ये स्ट्रेंथ रही है कि वो जो है वो निचला उनका बैटिंग ऑर्डर है, लोअर मिडल ऑर्डर हो गया, और जो उनके इवन टेल तो नहीं कहेंगे लेकिन जो उनके ऑलराउंडर्स होते हैं और आखिर में जीवन के 11 नंबर तक भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन वो करते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड होता है गेम का। अनफॉर्चुनेटली यही हमें कॉज किया पहले टेस्ट मैच में भी। वो आके अपने शॉट्स खेलते हैं और सम टाइम वो अंडर प्रेशर डालते हैं बॉलिंग साइड को, तो अब ऑब्वियसली उस पे हमारा फोकस है। हमने ऑब्वियसली प्लान्स हैं कि किस तरीके से उनको निगेट करना है, कि उनको ज़्यादा रन्स नहीं बनाने देने। सम टाइम उनका ऐसे प्लेयर्स का जब दिन होता है तो वो रन्स बना जाते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है, इसके अंदर आपको स्लिप्स भी रखनी पड़ती हैं, सम टाइम आपको कैचिंग पोजीशन पे फील्डर रखने, तो थोड़ा सा ऐसे प्लेयर्स को स्टार्टिंग में एडवांटेज होता है अगर उनके शॉट्स लगते हैं, क्योंकि उनके पास एरियाज होते हैं हिट मारने के लिए, स्ट्रोक्स खेलने के लिए। यस, हमारा हमेशा से जब भी इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं हमारा होता है कि इनके जो लोअर मिडल ऑर्डर जो इनका टेल है उसको ज्यादा रन नहीं बनाने देने, और इस मैच में भी हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अजहर अब्दुल गफ्फार बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। अदर दो सवाल, चूंकि हमारा पेस अटैक बहुत यंग था, अब्बास के अलावा नसीम और अगर हम बात करते हैं शाहीन की, और एक बड़ा अच्छा हमने ग्लिम्स देखा था जब सेकंड टेस्ट में एक बहुत ही ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर ये बॉलिंग कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा देर नहीं चल सका, बारिश हो गई। आप ओवरऑल कैप्टन समझते हैं कि ये दोनों स्पेशली जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस पर या फ्यूचर के लिए टेस्ट बॉलिंग पर जो है वो हमारे मैच विनर हो सकते हैं? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे अब ये डिबेट होती है कि शायद अभी ये बहुत इनएक्सपीरियंस है, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि हमें इनको जल्द उतारना पड़ गया? सेकंड अदर क्वेश्चन आपके मुतालिक है, बीइंग एन कैप्टन भी और बीइंग एन प्लेयर भी, कि जो सिचुएशन अभी आ गई है, आपने बहुत रन किए हैं पाकिस्तान के लिए, आप बहुत प्रूवन परफॉर्मर रहे हैं, ट्रिपल सेंचुरी, डबल सेंचुरी, लेकिन इस वक्त अब जिस सिचुएशन में आप आ गए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर तो नहीं फील कर रहे? या समझते हैं नहीं मुझे जितना एक्सपीरियंस है उसको ग्रो का लाना है, या प्रेशर आप फील कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी टीम और आप खुद रन ना कर रहे हो तो प्रेशर बड़े प्लेयर्स से भी आ जाता है। थैंक यू। फार आई थिंक आपने लेट ज्वाइन की है, दोनों क्वेश्चन में से आंसर हो गए हैं पहले, दोनों पे अजहर ने बड़ा डिटेल बोल दिया। अजहर इफ यू वांट अगर करना चाहो प्लीज। हाँ, तकरीबन हो गए हैं। कुछ फास्ट बॉलिंग पे भी हुआ है कि आई थिंक फास्ट बॉलर्स जो हैं वो जो हमारे हैं यंग हैं, लेकिन आपने देखा है कि वो अंडर प्रेशर लाते हैं दूसरी टीम को, एबिलिटी उनके अंदर है। कोई भी कैप्टन ऐसे बॉलर्स जो है वो अपनी साइड में देखना पसंद करेगा। एक्सपीरियंस को आप बाय नहीं कर सकते, वो खेलने से आएगा, और एज ए टीम मैनेजमेंट, एज ए कैप्टन दे हैव फुल बैकिंग ऑफ आवर्स, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इसी तरह बॉलिंग करते रहेंगे और बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, और पाकिस्तान को, उनके अंदर फुल एबिलिटी है पाकिस्तान को मैचेस जिताने की। और मेरा अपना ऑब्वियसली मैं पहले आंसर कर चुका हूँ, पूरा फोकस है इस टेस्ट मैच के अंदर, और पूरे कोशिश करूंगा कि एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए कैप्टन और एज ए बैट्समैन मैं परफॉर्म करूँ। अच्छा, कैसे देखते हैं कि दो मैचेस में जो समझा जाए कि तनकीद तो ज़ाहिर होती रहती है, पर जो परफॉर्मेंस का मैच ज़्यादा अच्छा ना तवक्कुआत के मुताबिक ना आ रहा, पॉजिटिव चीज़ आप बतौर कप्तान क्या देखते हैं इस टीम में? पॉजिटिव यही है कि मैं पहले भी सुबह कह चुका हूँ कि जिस तरीके से हम मैच हार गए जीती पोजीशन से, उससे हमने वापस आके दोबारा सेकंड टेस्ट मैच में जिस तरीके से क्रिकेट खेली, आई थिंक बहुत हार्टनिंग है, बड़ा ज़बरदस्त है कि प्लेयर्स ऑब्वियसली हर्ट थे लेकिन अपने आप को गिरने नहीं दिया उन्होंने। दूसरा, पहले टेस्ट में ले लें, सेकंड टेस्ट में ले लें, टफ कंडीशंस के अंदर हमने बैटिंग की, टफ ऑप्शन लिया, लेकिन टू विन अ टेस्ट मैच आपको ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और किसी भी बैट्समैन ने जो है वो गिव अप नहीं किया उन टफ सिचुएशन में, सबने फाइट आउट किया। देन बॉलिंग में बहुत ज़बरदस्त साइंस हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी पार्टनरशिप्स में बॉलिंग कर रहे हैं, रेट को कंट्रोल किया हुआ है, विकेट टेकिंग बॉल्स भी कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत सारे पॉजिटिव हैं। ऑब्वियसली वी नीड टू टेक वन स्टेप अहेड टू विन द टेस्ट मैच इंशाल्लाह, और पूरी कोशिश करेंगे कि इसी चीज जो पॉजिटिव्स हैं उसको कंटिन्यू करें, उनको बेहतर करें, और इंशाल्लाह ये अगला टेस्ट मैच जीत के जो है वो सीरीज को ड्रॉ करें। जी इरशाद, देन सैयद हैदर और देन इजाज वसीम।
रजा भाई मेरा भी आंसर हो गया क्वेश्चन, थैंक यू। ओके थैंक यू जी। सैयद हैदर आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा, देन बाकरी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम अजहर, मेरा आपसे सवाल आपकी बैटिंग से मुताल्लिक है। जेफ बाकार्ट ने एक एरर उन्होंने डिस्कवर किया है कि आप हमेशा बैटिंग करते हुए बॉडी अपनी पूरी पीछे लाते हैं बैट के, लेकिन अब वो आप क्रॉस जा रहे हैं ज्यादा, इस वजह से आप जल्दी आउट हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके कुछ एक्शन में कुछ कमी हो गई है, कुछ गलती हो रही है? देखिए कहीं ना कहीं तो आप का होता है मसला, तो आप रन्स नहीं करते, और हर चीज़ को हम एनालाइज करते हैं जब भी एज ए बैट्समैन भी, और जो हमारे कोचेस भी साथ होते हैं वो भी एनालाइज करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने बैलेंस के ऊपर अपने उसको जो कि लास्ट मैच में मैं अच्छा भी फील कर रहा था, बड़े ज़बरदस्त 2-2.5 घंटे में क्रीज पे रहा, 2-2.25 घंटे क्रीज पे रहा, और बड़ा अच्छा फील कर रहा था, बैलेंस फील कर रहा था, कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। समटाइम ये होता है कि आप अच्छा भी खेल रहे होते हैं, आपको अच्छा बॉल हो जाता है इन कंडीशंस के अंदर। तो मेरा फोकस ये है कि बिल्ड करूं, जो लास्ट इनिंग में मैंने टाइम गुजारा है और अच्छा बॉल बल्ले पे भी आ रहा था, तो उस चीज को कंटिन्यू करूं। ऑब्वियसली अगर कुछ चीजें ड्यूरिंग द सीरीज होती हैं तो आप उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी चीजें हमें नजर आ रही हैं एज ए बैट्समैन, चाहे मेरे ले लें या किसी का भी बैट्समैन का ले लें, और जिसको भी कोई चीज नजर आती है उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करता है जितना भी पॉसिबल हो सके। अजहर, मेरा आपसे सवाल ये था कि कोरोना वायरस से पहले आपने अपनी अवेलेबिलिटी शो की थी फॉर द वाइट बॉल क्रिकेट, तो अब क्योंकि वनडे तो है नहीं है, T20 मैचेस हैं, तो क्या आप इंग्लैंड रुक रहे हैं या आपने T20 के लिए अवेलेबिलिटी शो नहीं की, सिर्फ ODI के लिए की हुई है? ये कंफर्मेशन आपसे चाह रहे थे। मैंने ODI के लिए तो कभी भी नहीं की। हाँ मैंने डोमेस्टिक के लिए हमेशा से कहा हुआ है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल लूंगा, क्योंकि बहुत लंबा गैप आता है टेस्ट मैचेस के अंदर, तो कोई सी भी कम्पिटिटिव क्रिकेट हो मुझे खेलनी चाहिए, ताकि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप क्रिकेट से दूर हो जाएं ज़्यादा देर के लिए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वनडे इंटरनेशनल के लिए तो मैंने अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी शो नहीं की। जो है हाँ, ये मैं हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान टीम को जब भी किसी भी जगह पे मेरी ज़रूरत है तो हमेशा हाजिर रहूंगा, लेकिन कोई ऑफिशियली रिटायरमेंट मैंने वनडे क्रिकेट से वापस नहीं ली। डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने उस टाइम भी बोला था जब रिटायरमेंट ली थी, मैं वाइट बॉल खेलता रहूंगा ताकि मैं इन्फॉर्म रह सकूं। जी बिलाल प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। अजहर भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जब क्योंकि हमारी बैटिंग में तो पहले टेस्ट में जो दूसरी इनिंग्स थी उसमें हमारी बैटिंग लाइनअप बुरी तरह कोलैप्स हो गई थी। दूसरे मैच में भी हमने पहली इनिंग में हमारे जो टॉप ऑर्डर था वो इतना अच्छा नहीं, ऐसे भाई आप इधर के तो क्या जो खामियां हमारे बैट्समैन करते हैं, क्या जब दिन खत्म होता है तो उसको रिव्यू करते हैं कि जो मिस्टेक्स आप लोग कर चुके हैं, जिस मिस्टेक की वजह से आपकी विकेट जाती है, क्या आपके बैटिंग कोच उस पर आपकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं या कोई इस तरह से आपको मतलब बताते हैं कि कहाँ आप लोगों ने मिस्टेक किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एज ए कैप्टन और एज ए टीम मैनेजमेंट जितने भी बैटिंग को है वो दे आर वेरी हैप्पी द वे आवर बैट्समैन आर बैटिंग इन टफ कंडीशन। जितने भी कंडीशंस यहाँ पे हैं उस हिसाब से बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। आप उनकी बॉलिंग साइड देखें, बड़ी एक्सपीरियंस बॉलिंग साइड है, बड़ी ज़बरदस्त एरियाज में वो बॉल करते हैं और कंडीशंस को पूरी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं। उसके बावजूद जो हमारे बैट्समैन हैं, हाँ मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट टेस्ट की सेकंड इनिंग थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई, हमसे रन आउट हो गए, एक दो सॉफ्ट डिसमिसल्स हुए जिसकी वजह से हमें कॉज किया वो टेस्ट मैच। उसमें खाली एक रीजन वो नहीं थी, लेकिन वन ऑफ द रीजन कि हम उनको बैट आउट नहीं कर सके गेम से। लेकिन स्टिल आई फील के बैटिंग जितनी देर भी खेल रही है बड़ी जबरदस्त फाइट आउट कर रहे हैं। सवाए उस इनिंग के 236 जो पहले दूसरे टेस्ट में भी किया, आप कंडीशंस को देखते हुए देखें कि आप शाम 5वें दिन की जो इंग्लैंड की बैटिंग भी उठा के देख लें तो बैटिंग आसान नहीं थी। तो इन टफ कंडीशंस के अंदर एशियन बैट्समैन जो कोई भी आता है तो वो स्ट्रगल करता है, लेकिन जिस तरीके से हमारे बैट्समैन खेल रहे हैं, फाइट आउट कर रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। उनको मैं भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो है हमारे बैटिंग कोच भी कर रहे हैं, कोचेस भी कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी करना चाहिए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। स्ट्रेट अवे हम लोग प्रैक्टिस पे जाएंगे इंशाल्लाह, फिर कल मैच के बाद आप लोगों से